नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी को चुनावों के बीच एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े झटके लग रहे हैं। सूरत और इंदौर के बाद अब पुरी में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी जो पुरी लोकसभा सीट से हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि अब सूरत और इंदौर के बाद अब पुरी लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार किया है। और इसी के साथ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं पुरी लोकसभा सीट से, संबित पात्रा, उनकी राह अब इस सीट पर काफी ज्यादा आसान हो चुकी है कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले से। मैं आपको जानकारी दे दूं कि कांग्रेस की पुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुचिता मोहंती ने चुनाव प्रचार के लिए पार्टी से पर्याप्त फंड नहीं मिलने का हवाला दिया है और अपना टिकट वापस कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बाकायदा सुचित्रा ने इस बात को माना है और ये कहा है कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक फंडिंग का सहारा लिया, अपने कैंपेन में कम से कम खर्च करने की कोशिश की। इसके बावजूद मैं आर्थिक रूप से संघर्ष करती रही और एक प्रभावशाली चुनाव प्रचार अभियान को कायम नहीं रख सकी, इसलिए मैं अपना टिकट वापस कर रही हूँ। I haven't denied. Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. So it was not possible for me to campaign with these two conditions. And what was the response? Any response from K.C. Venugopal and any discussion with you after your letter? No, there is no like if there would have been any positive response, I wouldn't have returned my ticket. Obviously, there is no positive response as such. And what was any discussion with Ajay Kumar? What Ajay Kumar told you? And he had told me categorically that I have to organize my own resources. The party can't fund me. Yeah, Ajay Kumar, state Odisha. Yes. And any other discussion? No other discussion. I had asked for change of some of the candidates who are weak. I wanted better candidates. That also didn't happen. And Ajay Kumar, before you getting tickets, you discussed with Ajay Kumar details on that or not? No. I don't think it is done in. I don't know about other parties. When you apply for a ticket, and I got the ticket in a very democratic way, our central leadership and state leadership both decided to give me the ticket because they thought I am winnable. My winnability is better than other candidates. And I did not, that time obviously I didn't discuss any funds and all that because it's normally, it's understood. The party candidates, party funds the candidates. But this time the situation is different. BJP government has put all kinds of curbs and restrictions on our accounts. Then even for the supporting the candidates, party is not able to do it wholeheartedly. They are finding it, they are under pressure, they are finding it difficult because of BJP government doesn't want Congress to put up a good campaign or win. This is very obvious. And so party is unable to support its candidates. And you try for donation also? Yes. When I was told that I have to organize my own resources, so I thought of, I started one donation drive in my social media, and I knocked all doors if I could get some funds to sustain my campaign, but it didn't happen that way. It's not easy because the time is very limited, and then on top of it, I am contesting. Two of my opponents are real money bags.
So since I'm contesting against them, I didn't want to compete with them with their vulgar display of money and power and all kinds of things which is not required. I wanted to have a simple campaign of my own, people-oriented, people-centric campaign. But even for that, you need basic funds. You just can't do your campaign just like that, no? Even I have to reach out to my voters. For that also, going there also I can't walk down and cover 7 constituencies in Padayatra. There is no time for that. I have to, then for nomination, for other things, technical reasons also, you need everything, social media, all kinds of things, you need money, basic money to contest, which I thought I won't able to manage. Party is not giving me and I am unable to manage on my own. So I thought this is the best decision. ये कांग्रेस पार्टी के लिए चौथा बड़ा झटका है इन चुनाव में, जहां सूरत जैसी सीट से निर्विरोध जीत बीजेपी की हो चुकी है, तो वहीं दरअसल इंदौर में भी नामांकन जो था कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने वापस ले लिया। वहां की सीट भी बीजेपी ने अपने नाम कर ली और वहीं खजुराहो समेत अब पूरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या वजह सिर्फ पर्याप्त फंड है या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं वोटर्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जनता भी नहीं दिखाई दे रही है, क्या ये वजह है कि उन्होंने अपना जो टिकट था वो वापस कर दिया है? ये कहीं ना कहीं कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुचरिता मोहंती ने तो यही कहा है कि मुझे पार्टी से फंड देने से इनकार कर दिया गया, विधानसभा क्षेत्र में कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, बीजेपी और बीजेडी पैसे के पहाड़ पर बैठे हैं, ये मेरे लिए मुश्किल था, हर जगह धन का अश्लील प्रदर्शन हो रहा है, मैं उस तरह ये कंपटीशन नहीं करना चाहती, मैं एक पीपल ओरिएंटेड कैंपेन चाहती थी, लेकिन धन की कमी के कारण यह संभव नहीं था। ये कहते हुए उन्होंने अपना एक टिकट जो था वो जाहिर तौर पर वापस कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा झटका जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगा है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि पुरी की जनता से अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, और अगर रिस्पांस मिल रहा था, अगर पुरी की जनता, आप ये कहते हैं कि बदलाव चाहती थी, तो आपने टिकट वापस क्यों किया? आपको पैसे की क्या जरूरत थी? अगर आपको जनता पर इतना ही विश्वास था तो फिर आपको पैसे की जरूरत क्या थी? ये कई सवाल हैं जो लगातार अब सुचरिता से तमाम लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या हालात इन चुनावों में बन रहे हैं, ये लगातार तस्वीरें बता रही हैं, जहां नामांकन रद्द हो रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवारों के, कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लौटा रहे हैं। वो दरअसल ये कहते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कि दरअसल वो कांग्रेस में रहना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके के हालात कहीं ना कहीं बन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। नरेंद्र मोदी जी के लिए प्यार है। महाप्रभु जी का मंदिर सामने दिख रहा है, जगन्नाथ जी का, और अब देखिए सामने में लाखों से तादाद में लोग आज मौजूद हैं। ये हमारा नॉमिनेशन चल रहा है। स्वाभाविक रूप से ये मेरे लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी के लिए प्यार है। लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार है, लोगों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आस्था है, गरीब कल्याण योजना के प्रति जो सम्मान है, उस सम्मान को आज लोग लाखों की तादाद में पुरी में आकर के दर्शा रहे हैं। पुरी में भी इस बार भाजपा की जीत होगी और उड़ीसा में भी इस बार भाजपा की जीत होगी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी उनके नेता या उम्मीदवारों के लिए नहीं, बल्कि उनके ही पार्टी पर अपनी राजनीति करने वाले, जैसा कि पत्रकार रवीश कुमार कर रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। रवीश कुमार जैसे पत्रकारों के लिए हालात ये हो चुके हैं कि करें तो क्या करें,
जिस राहुल गांधी की तारीफ में कुछ घंटे पहले राहुल गांधी की तारीफ करते हुए रवीश कुमार कसीदे पढ़ रहे थे, अमेठी में चुनाव लड़ने से क्या क्या फायदे राहुल गांधी को होंगे, कांग्रेस पार्टी को होंगे, ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा अमेठी में चुनाव लड़ना, ये तमाम बातें 2 घंटे का वीडियो शूट करके रवीश कुमार बता रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के एक फैसले ने ही कुछ घंटे बाद ही रवीश कुमार को दोबारा 2.5 घंटे का वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, रवीश कुमार ने इस 2.5 घंटे के वीडियो में फिर यह बताया कि राहुल गांधी के रायबरेली में चुनाव लड़ने के फायदे क्या हैं, अमेठी से चुनाव लड़ते तो कितना नुकसान होता। तो ये रवीश कुमार के लिए हालात बन चुके हैं। रवीश कुमार जो कि तमाम न्यूज चैनल्स को कहते हैं गोदी मीडिया, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं, खुद अगर वो अपनी वीडियोस को भी एक बार देख लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की चमचागिरी कहीं ना कहीं खुलेआम रवीश कुमार कर रहे हैं। क्योंकि पहले जब खबर आई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तब रवीश कुमार ने 2 घंटे का वीडियो बनाकर जनता को बताया कि राहुल गांधी के अमेठी पे चुनाव लड़ने से क्या क्या फायदे होंगे, ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। लेकिन जब खबर आई कि राहुल गांधी अब अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर रवीश कुमार ने कुछ घंटे बाद 2.5 घंटे का वीडियो बनाया, जो उनके यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। उसमें रवीश कुमार ने विस्तार से बताया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो ये कितना नुकसानदेह साबित होता। ये वही रवीश कुमार हैं जो राहुल गांधी के रायबरेली में चुनाव लड़ने के अब फायदे बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब रवीश कुमार को लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं कि ये आखिर किस तरीके की पत्रकारिता रवीश कुमार कर रहे हैं। और अगर अब किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया तो इस तरीके के सवाल वो अपने वीडियो में कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर रवीश कुमार को लेकर अब कहीं ना कहीं तरह तरह के कमेंट्स लोग जो हैं सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से दरअसल पुरी से उम्मीदवार जिन्होंने संबित पात्रा के लिए राह काफी आसान कर दी है, सुचरिता मोहंती, उन्होंने दरअसल टिकट वापस लौटा दिया है। और वहीं इससे पहले सूरत और इंदौर में ये तस्वीर देखने को मिली। तो इस तरीके से बीजेपी एक के बाद एक सीटें जीतती जा रही है। लगभग 4 सीटें हैं जो अपने नाम बीजेपी आसानी से कहीं ना कहीं कर ली है। और पुरी की बात की जाए तो बीजेपी ने संबित पात्रा को वहां से उतारा है, जबकि बीजेपी के अनुरूप पटनायक चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संबित पात्रा को टिकट दिया था, तब वो बीजेपी के पिनाकी मिश्रा से मात्र 1 लाख वोटों के अंतर से हार गए थे। हालांकि अभी ये मुकाबला कैसा होगा ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।